कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर काशीश माटा। आपको कैसा लग रहा है एमपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करके? Yes, ma'am, it's a very wonderful experience since I have been trying for a long time to clear the examination, and finally now that I have cleared it, so it's an amazing feeling that every effort which I put in the exam, it was worth doing that. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम इतने समय से तैयारी कर रहे होते हैं, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर सो मेनी डेज कि Yes. हमें एक एम एस्पायर हम कर रहे हैं, एक अचीवमेंट है, एक गोल है, देन हाउ डज इट एक्चुअली फील कि मतलब एक अकम्पलिशमेंट फील होती है कि जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, नाउ यू आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म जिसके लिए आपने दिन और रात मेहनत की होती है। Yes. तो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस आप कहेंगे कि आपकी लाइफ में रहे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? Ma'am, starting from the contribution, if we talk about the contribution, so there are contribution of many people, starting from my parents, the family members, all the people, the mentor, my mentor, say Alok Kumar Ranjan sir, the coaching people. So everybody has combined effort and contribution in this achievement. So you have taken coaching for the judicial services examination. Which coaching you have taken? I have taken coaching from Ambition Law Institute, Delhi. Okay. In which year did you take your coaching? I took coaching in 2016-17 batch. How did you prepare for the prelims and mains exam? Basically, did you studied for them integrated manner, or you prepared them for separately? No, from the beginning, as I was guided by the Alok sir, so the preparation has to be integrated for the prelims as well as for mains, and also for the interview. The preparation is singular for all three stages, and it has to be integrated. For the preliminary stage, the approach has to be slightly different since we have to mark objective questions. So it is quite different from the mains, but study has to be done in integrated manner. So in coaching, आपको किस तरह ये बताया जाता है that how you have to prepare for prelims और mains की तैयारी कैसे करनी है, and what are the interview techniques? क्योंकि कुछ interview techniques के बारे में हमने सुना है that there are videos available on YouTube. YouTube पे काफ़ी videos available हैं interview techniques की, Ambition Law Institute की. So आप कैसे कहेंगे कि prelims, mains पर किस तरह focus किया जाता है? जी, जैसे कि आपने बताया कि 3 स्टेज हैं, तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर प्रिलिमिनरी आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली पेरेंट्स को पढ़ना पड़ता है और बहुत माइन्यूट डिटेलिंग में आपको उसको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। प्रिसाइज नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपको 4 में से 1 मार्क करना है उसमें, तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, और उसकी एक्सटेंसिव थोरो स्टडी करनी पड़ती है ऑफ द बेयर एक्ट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एंड इन माई कोचिंग टाइम द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड अस द objective paper on daily basis. So for example, if we have studied a topic today, let's say we are doing CPC and we have studied res judicata, so on the very next day we will be given questions based upon that topic, preliminary question, 10 to 15 questions on that very topic which you have studied a day before. So if any person who is doing that seriously and sincerely, so that topic is covered extensively, thoroughly. मतलब you will not face any problem at the time of examination because you have already faced many questions on the same aspect. So it is widely covered. So now talking about the mains question, the coaching also provides the subjective answer writing, that too on the daily basis. So if you start writing the answers on daily basis, you're writing 2-3 answers on daily basis. So in a long run, it will help you in your writing skills. मतलब आप डेली कहना चाह रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट दिए जाते थे, डेली एक राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी, जिसने आपकी इस प्रिपरेशन में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया है। In a long run, in a long way, in a big way. तो आपके कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहे हैं जिसपे आपको लगा है कि वो मेरे सिक्योरिंग सब्जेक्ट्स रहे हैं, या जिसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही है? जैसे कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपने उसकी तैयारी कैसे की? क्योंकि माना जाता है कि वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, वो बहुत वाइड है, उसमें आर्टिकल्स इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमसे तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, हम आर्टिकल्स भूल जाते हैं। तो आपने किस तरह से इसकी तैयारी की? Ma'am, Constitution is a very major subject, and as you mentioned, it is very important in all kinds of examination, competitive examination, be it judicial service, be it civil service, in every examination. And it's a very wide subject. So my focus was on the Bare Acts. So we used to study thoroughly in a class. We used to study the Bare Acts article wise.
almost every article. And those articles which were not dealt in the class, the sir used to mark those articles. You have to study these articles. These are important, but you do it on your own. You will face these questions in the examination. So in that manner, from the BEAR Act, we prepared the basis. A basic foundation is created from the BEAR Act. And after that, we used to study the material which is provided here. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक स्पेसिफिक मतलब मटेरियल Yes, सब yes. प्रोवाइड किया जाता था Yes, फॉर yes. एवरी सब्जेक्ट. Yes, definitely. That material contained the PYQs of the subjective questions as well as for the preliminary questions, and that is given topic wise. So if we are reading about the union legislature, union judiciary, so first there will be reading material on that, and at the end of the chapter you will find the questions, objective questions, subjective questions of each state. So if you read that and after that you go to the questions, you are good to go for the examination. It will serve all the purposes, all the requirements. So in that manner I have prepared the constitution and other subjects as well. तो आप कहना चाहते हैं कि जब आप कोई भी स्टूडेंट कोचिंग लेता है तो टीचिंग टेक्निक बहुत मायने रखती है. द टेक्निक व्हिच अ टीचर इज अडॉप्टिंग टू टीच द स्टूडेंट्स वो बहुत मायने रखती है कि किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली मटेरियल तो सब जगह प्रोवाइडेड होता है, मटेरियल हर जगह अवेलेबल होता है. आजकल मटेरियल सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत सारे माध्यमों से उपलब्ध है. लेकिन कहीं ना कहीं टीचिंग टेक्निक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट की लाइफ में. क्योंकि एक करेक्ट ओरिएंटेशन एट अ राइट टाइम बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर वो सही गाइडेंस उसको उस समय मिल जाए तो देन द स्टूडेंट कैन मूव फर्दर इन अ राइट डायरेक्शन. तो टीचिंग टेक्निक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाता है और किस तरह से ओरिएंटेशन दी जाती है? That is a very good question. And talking about the importance and significance of the teaching pattern, that is very instrumental, because आपकी जो एक स्टूडेंट की ओरिएंटेशन बनती है वो टीचर ही बनाता है. तो टीचर आपको बताता है कि आपको बिकॉज सिंस एज यू सेड एवरीबडी हैज द कंटेंट एंड इट्स अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो, ऑल द रीडिंग मटेरियल्स एंड ऑलमोस्ट every material has the same in content in it. So what makes the difference is how you approach that material. True. And that orientation is given by the person who's teaching you. So if I talk about myself, so in our class the sir used to teach us for any subject he gave us a one word technique. So what is one word technique? He said you pick any section or any article and make a one word for it. So if you make a one word for it, then it will be easy for you to remember the whole provision in it. अगर आप अपनी मेमोरी बना लेते हैं एक सेक्शन और कहते हैं एक वर्ड की, जस्ट वन वर्ड, तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा. तो दिस इज द ओरिएंटेशन एंड इट हेल्प मी इन अ वेरी बिग वे इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इन द मेंस एंड इन द इंटरव्यू एज वेल. ओके, तो कीवर्ड से आप कह रहे हैं कि सेक्शंस को, आर्टिकल्स को याद रखा जा सकता है क्योंकि इतने सारे सेक्शंस होते हैं तो उनको आप थॉरोली याद नहीं कर सकते हैं. सो बाय दैट कीवर्ड यू कैन रिमेंबर द सेक्शंस. यू हैव टू इम्बाइब द सेक्शंस इन योर ओन मैनर. आपको उसको इम्बाइब करना पड़ेगा, आपको उसको एसिमिलेट करना पड़ेगा अपने वर्ड में. एंड द इजीएस्ट वे टू डू इट, गिव इट अ वन वर्ड, गिव इट अ नेम, गिव इट योर पर्सनल नेम एंड अटैच इट टू द सेक्शन. You'll remember it. And if you continuously revise it, then you'll definitely remember it. So is there any specific strategy जो आपने फॉलो की अपने इस प्रिपरेशन में? कोई ऐसा जैसे आपको लगता हो कि नहीं ये स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, ये डिसिप्लिन मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया, या कुछ ऐसे शेड्यूल जैसे आप कांस्टेंट स्टडी में स्टूडेंट्स बहुत ऐसा करते हैं दैट आई हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स टू स्टडी 10 आवर्स 12 आवर्स. कुछ स्टूडेंट्स तो 15 घंटे भी पढ़ते हैं. तो हाउ डू यू फील कि क्या 15 घंटे पढ़ना नेसेसरी है? मतलब क्वालिटी स्टडी ज्यादा जरूरी है या हमें आवर्स गिन के पढ़ना जरूरी है? मतलब कि कितने घंटे हम पढ़े ये ज्यादा जरूरी है? Yes, ma'am. When I was an aspirant, so this question haunted me as well. कि how much hours I have to give it. But in the process, I realized it is the quality which will prevail over the quantity. Right. तो आप जितने कम समय में भी अगर आप अच्छे से उसको effectively read कर लेते हैं और समझ लेते हैं बात को, but that is sufficient. आपको कोई 15 घंटे पढ़ सकता है ये तो मुझे अभी भी believe नहीं होता. 6 to 7 hours, 8 hours is more than enough. अगर मुझे इस पे इस क्वेश्चन के लिए एक बात याद आ रही है सर की. When he was teaching us Evidence Act, so in Evidence Act there is section 6 which deals with res geste. Everybody knows res geste is a very famous concept. So in the class while teaching us res geste, he related that section with us.
How related? He said the section requires the continuity. The facts, the events, they have to be attached with continuity. There has to be element of continuity to make it relevant in the section 6. So he said, as similarly, your preparation, your study require continuity. आप उस एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ते हो, उसको छोड़ देते हो, तो continuity breach हो गई. तो आपको अपनी प्रिपरेशन को रेलेवेंट बनाए रखना है, उसको आपको एंड तक ले जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा. तो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की. दैट्स अ वंडरफुल मैसेज काशिश. मतलब आपने बहुत अच्छी बात बताई. इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो ये बात जरूर समझेंगे कि एक इफेक्टिव स्टडी के लिए या आप जब कोई गोल बनाते हैं तो उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि आपने गोल बना लिया, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि एक कंसिस्टेंट एफर्ट, एक परसिस्टेंट आपके अंदर लगन होनी चाहिए अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए. इट इज नॉट कि आप एक दिन पढ़े और अब आप सोचें कि आप जज बन जाएंगे, एक IAS ऑफिसर बन जाएंगे. उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए. तो बहुत ही अच्छी बात आलोक सर ने आपको बताई, समझाई. तो कुछ गाइडेंस आप देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए या किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे कि MP जुडिशरी आपने दिया, उसमें लोकल लॉज आते हैं, तो लोकल लॉज के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की, या जो स्टूडेंट्स अब MP का एग्जाम देंगे, आगे फर्दर एग्जाम देंगे, तो उनको किस एरियाज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या कहाँ उनको ज्यादा बेटर स्कोरिंग वो कर सकते हैं? तो आप क्या अपने तरफ से एक पर्सनलाइज्ड ओपिनियन देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपकी तरह डेफिनेटली उस जगह पहुंचने के लिए? So talking about the MP judicial services, my experience is that कि first of all you see the previous year papers. हमें भी क्लास में ये बताया गया था previous year papers, but at that time I used to take it very lightly. क्योंकि इतना आप सीरियस स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, बाद में सीरियस हो जाते हैं, तो आपको समझ आता है. बट अगर आप सीरियसली एम कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रिलिमिनरी के देखिए, मेंस के देखिए, दोनों के देखिए. उसको आप देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन हाउ मच डेप्थ यू हैव टू गो, आपको किस एक्सटेंट तक जाना है और कहाँ रुक जाना है. तो ये आपको आइडिया PYQ से मिल जाएगा. जब आपने PYQ अपने ईयर मार्क कर लिए हैं, आपने वो एरियाज मार्क कर लिए हैं, आप उनको ज्यादा एम्फेसिस दीजिए, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स. अदर टॉपिक्स को आप रीड करिए, बट फोकस आपका जो PYQ है उसको ज्यादा होना चाहिए. अदर टॉपिक्स आपकी एक्वेंटेंस होनी चाहिए. इन केस अगर वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस मेंस एग्जामिनेशन देयर वर वेरियस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑफ बीट एरियाज, जो पहले कभी नहीं पूछे गए किसी जुडिशियल एग्जामिनेशन में. सो दिस टाइम आई थिंक दे हैव बिकम क्लेवर, सो दैट दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ बीट एरियाज जो पहले मेंस में नहीं आए, कहीं भी नहीं आए हैं. तो उन टॉपिक्स के लिए आपको घबराना नहीं है, आपको उनकी एक्वेंटेंस होनी चाहिए कि इसमें ये प्रोविजन दी गई है एट अ वेरी सटल, नॉट एट वेरी सटल लेवल, बट अ ब्रॉड आइडिया शुड बी देयर. यस, एंड फॉर PYQs यू शुड बी थॉरो विद इट. अगर वो आता है तो आपको उसमें फुल स्कोर लेना पड़ेगा, और बाकी के लिए आपको एक्वेंटेंस होनी चाहिए कि ये प्रोविजन है. और दिस इज माय स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जामिनेशन. बिल्कुल सही बात आपने कही है कि मतलब ऐसा कहा जाता है ना दैट यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग बट यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग. तो आपको पता होना चाहिए कि सब टॉपिक्स के बारे में, ताकि आप पेपर में कभी ब्लैंक फील ना करेंगे. अच्छा इसमें क्या अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है. तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है. तो आप अपने स्टडीज में क्या नोट मेकिंग को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं कि नोट्स बनाना, नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आखिरी समय पे एक स्टूडेंट के लिए वही रिवीजन का सबसे बड़ा माध्यम होता है. क्योंकि एंड में ही कैन नॉट गो विद एवरी मटेरियल लाइक बुक्स, रेफरेंस बुक्स, PYQs, एज यू सेड कि आपके कोचिंग में मटेरियल दिया जाता था, PYQ बुक्स अवेलेबल हैं, ऑल इंडिया जुडिशरी बुक अवेलेबल है. तो लेकिन नोट्स का क्या रेलेवेंस है? मतलब नोट मेकिंग किस तरह, क्या आपको गाइडेंस दी जाती थी नोट मेकिंग पर भी? मतलब नोट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट लोग इसको कुछ ज्यादा नोट्स बनाने के परस्यू में इसको ज्यादा बुक मेकिंग कर देते हैं. तो नोट्स का मतलब है आपको ब्रीफली समराइज करना है कंसेप्ट्स को, जो आप एंड मोमेंट पे रेफर करके अपना एग्जाम में लिख सकें आप. तो नोट मेकिंग जैसे हमें बताया गया था क्लास में, क्लास नोट्स सर देते थे हमें, तो वी यूज्ड टू नोट डाउन दोज नोट्स, एंड वंस नोट्स आर नोटेड डाउन, सो वी यूज्ड टू लीव वन पेज so that if any other information on that topic हमें दिखती है, जैसे कि ये भी इसमें एक एस्पेक्ट है इसका, तो we used to write that on that blank page later on. And when we revise things,
later on after the class or at later stage of time, तो आप उसी को रेफर करें बस, जो आपने क्लास में लिखा है, बिकॉज वहां से आपकी एक, उसको बोलते हैं कि फोटोग्राफिक और ऑडियो वीडियो आपकी मेमोरी बन गई है उससे, क्योंकि आपने क्लास में देख लिया उसको और अपने हैंड राइटिंग में लिख लिया, तो आप उससे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेरियस अदर सोर्सेज, क्योंकि आपको वो एट द एंड इन द एग्जामिनेशन आपको यही याद आएगा कि क्लास में ये बताया गया था, ये डिस्कशन हुई थी और ये मैंने लिखा था नोट्स में अपने। अगर आपने उसको मल्टीपल रिवीजन किया है तो आपको वो डेफिनेटली क्लिक करेगा वहां पे, और वो क्लिक करना बहुत जरूरी है, उसके लिए नोट्स मेकिंग रिक्वायर्ड। कशिश, आपको अपनी पूरी इस प्रिपरेशन जर्नी में क्या कभी भी ऐसा लगा कि नहीं मुझसे अभी नहीं हो सकता, या अब शायद मुझे ये एम छोड़ देना चाहिए, या शायद मैं इस एम के लिए बना ही नहीं हूँ, या इस पोस्ट के लिए बना नहीं हूँ, या कभी हिम्मत हारी हो, या फिर ऐसी कौन सी चीज है कि जब आपने जिस पॉइंट पर ऐसा फील किया हो तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया? जी, ये आपने बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा, एंड दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर मी। I gave my first examination in year 2017 when I passed out. So that was Chhattisgarh Judicial Service examination, and I did my coaching before that. My coaching was complete. I appeared for the preliminary stage. I cleared that. I appeared for the main stage of that examination. I cleared that, and I appeared in the interview as well in the very first examination of Chhattisgarh. But unfortunately, I couldn't clear the interview. I couldn't qualify that examination. So I got the satisfaction, I got that assurance कि yes, I can do this. ये मैं कर सकता हूँ, ये अचीवेबल है मेरे लिए। उस एग्जामिनेशन ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ हो सकता है, अगर आप अपनी कमियों को दूर कर लें तो ये आप कर सकते हैं। बट उसके बाद ऐसा इवेंट्स हुए कि इसके बाद I appeared in almost 8 to 9 examinations. I cleared all the preliminary examination. I have never flunked or failed any preliminary examination. I appeared in many mains क्वालिफाई नहीं हो रहा था, तो मेंस में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, कि हो क्यों नहीं रहा। ऑल्दो आई वाज थोरो विद माय प्रिपरेशन, बट एक डिमोटिवेशन डेफिनेटली आ जाती है। एक सेटबैक आपको मिलता है आफ्टर मेनी फेलियर्स, यू फील अ सेटबैक इन लाइफ कि पता नहीं गलत चीज में आप घुस गए, कि आपके लिए बनी नहीं है। ऐसे आपने बोला कि एक फीलिंग आती है, डेफिनेटली नेगेटिविटी आती है उसमें, कि आपको लगता है यार कुछ और कर लेना चाहिए। बट वही है, अगर आपने उसको स्टार्ट किया है, यू नो व्हाई यू स्टार्टेड इट, राइट। इफ योर गोल, इफ योर द मोटिव, you have clarity on your motive, why you started it, and your motive inspires you and motivates you on daily basis, कि आपको वो आराम से बैठने नहीं देता, आपको वो continuously push करता है, आपका motivation, that why you want to go in judicial services. If you have the right inspiration, so then it will not let you give up. आप उसको give up नहीं कर पाएंगे. And one more thing, the people surrounding you. If the people surrounding you, they have seen you that you are very sincere about this goal, and you have the capability, although results are not in your hand, but हाँ इसमें potential है, ये कर सकता है, तो they will also encourage you कि आप इसमें लगे रहिए, आप इसको छोड़िए मत. And by God's grace, this time I cleared the examination after a long struggle. बिल्कुल सही कहा आपने। एक सही साथ, आपके सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कौन से लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको हर समय प्रेरित कर रहे हैं, हर समय मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अच्छा कीजिए अपने जीवन में। और उसमें सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके दोस्त, आपके टीचर, जैसा आपने कहा कि आलोक कुमार रंजन सर ने आपको हमेशा गाइड किया, आपको समझाया और हर सही गलत का फर्क समझाया। तो कहा जाता है कि जब तक आप उस ऊंचे पायदान तक पहुंचते हैं, तब तक बहुत सीढ़ियां, बहुत कंधे आपकी जिंदगी में आते हैं। तो हर इंसान उसी कंधे का काम करता है। जैसा आपने कहा कि आपकी लाइफ में सबका इतना बड़ा रोल रहा है, तो कोई एंड मैसेज आप देना चाहेंगे सब जुडिशियल एस्पिरेंट्स को? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं समझती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे वो जरूर आपकी लाइफ से प्रेरित होंगे कि आपने इतने एग्जाम्स दिए, आप मेंस में रुके, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, और इस बात को वो समझेंगे कि फेलियर आपकी लाइफ में ये डिसाइड नहीं करता है कि आप आगे चल के कहाँ पहुंचेंगे। तो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप एक मैसेज देना चाहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को जो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं, तो क्या फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? The final message which I would like to give to all the aspirants is
कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड। आप नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, आप ब्रेक ले लीजिए, बट कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, योर पेरेंट्स, योर फैमिली एंड अदर थिंग्स, जो भी आपको अपना कुछ भी लाइफ में चेंज लाना है, कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड। एंड मुझे जो पर्सनली एक कोट है अल्लामा इकबाल की, जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी, इट गोज लाइक दिस कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये कोट जो है मुझे बहुत इंस्पायर करती थी हमेशा से, और आपकी भी कोई भी कोट हो सकती है जो आपको इंस्पायर करे। तो कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। एंड द परसिवियरेंस, डेफिनेटली यू हैव टू बी परसिवियरेंट, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको बिंदु तक पहुंचाया है। आखिरी बिंदु जो आपने कही है वो बहुत ही अच्छी तरह से कही है कि इंसान को अपना जो लक्ष्य उसने चुना है वो क्यों चुना है बस वो नहीं भूलना चाहिए। तो इससे वो कभी भी हार नहीं मान सकता कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी जिंदगी में कोई एम डिसाइड करता है तो वो कुछ सोचकर ही डिसाइड करता है। अगर वो उस समय पर ये याद कर ले तो शायद वो कभी भी हारा हुआ या डिमोटिवेटेड फील नहीं करेगा। इन द वीक मोमेंट्स अगर वो उसको याद कर ले तो इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम। इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम। तो सभी स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए, और जैसा कि काशिश माता ने कहा, क्योंकि ये एमपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं और इनकी 27th रैंक है, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी बातें सुन के। जैसा कि इन्होंने समझाया कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए और कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इन्होंने बहुत मैसेज अच्छे दिए कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किस तरह मटेरियल को रेफर करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि आपको अपने टीचर को फॉलो करना है जी। क्योंकि एक गुरु और स्टूडेंट का जो ट्रस्ट होता है, एक जो रिलेशन होता है, उसमें अगर यदि ट्रस्ट नहीं है, एक फॉलोइंग नहीं है, तो आप उस सही रास्ते पे चल नहीं सकते। I would like to add a point on this since you have mentioned this. I sincerely believe जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आप जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, you should have immense faith on that person. True. अगर आपको उन पे फेथ नहीं है तो वो जो पढ़ा रहे हैं आपको उस पर भी फेथ नहीं होगा। अगर आपको उस पर भी फेथ नहीं होगा तो आपका कोई एग्जाम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, आपको वहाँ अपनी नॉलेज शो करनी है एग्जामिनेशन में। जो पर्सन आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा है, अगर आपको उन पे फेथ नहीं है तो आप यू विल नॉट एक्सेल। सो यू हैव इमेंस फेथ इन दैट पर्सन हु इज टीचिंग यू एंड ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जैसा हम कहते हैं कि हम अपने इंडियन कल्चर में गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु का बहुत मान रखते हैं, और वो शायद इसीलिए है क्योंकि एंशिएंट समय से और प्राचीन काल से हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें मानना है, और शायद ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर हमें जिंदगी में अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना है, किसी एम को पाना है, तो उन पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, और खुद पर भी भरोसा करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने कहा कि मैंने अपने खुद पर भरोसा कभी नहीं खोया, तो वो बहुत जरूरी है। तो इसी से हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और स्टूडेंट्स को जो मैसेज गया है डेफिनेटली वो उसको अपने लिए फॉलो करेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर काशिश माटे आपसे बात करके। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर सक्सेस इन एमपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और हम ये आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस टेन्योर में, अपने इस कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम करेंगे और अपने आने वाली जिंदगी में भी अपने आप को अच्छी तरह से साबित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।